ओके अभी भी 10 अटेंडेंस है, वी कैन वेट फॉर 2 to 3 minutes मोर ताकि कुछ बच्चे और ऑनलाइन हो जाए, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं. Okay, class, I think we should start. Today we will cover the instructions regarding your experiment number 2. I have not yet shared the documents regarding this experiment. I will share that in a while, soon after the class. So you will get that link also in your WhatsApp group. So in which I will share the PDF of this experiment in slides की मैं आपके साथ PDF share करूँगी, also the video performance and the audio recording for your further reference. Okay. So today your experiment is to verify the impulse momentum principle for a jet of the water striking on 90 degree, 120 degree and 180 degree deflectors, and to investigate the effect of the velocity of the flow on the impulse force of jet for various deflectors. Now, this experiment is basically referring to your impact of jet topic, and this topic covers a whole chapter in your fluid mechanics 2 content. So whenever I will start your theory from next to next week, I will start your theory, and Sir Usman will take your labs further. So the first chapter which we will start, that is this impact of jet. So we will cover this topic in very detail. For the time being, I will give you a basic idea so that you know what is this principle. Okay, तो कुछ confusions अगर हैं, that will be discussed in detail in your theory classes when I will start with this chapter. Otherwise, hopefully, you will understand the basic concept of this principle during the lectures. So I will try कि basic concept जो है आपका वो आपको clear हो जाए. Okay. Now we will read the statement again, and we will try to abstract the objectives of this experiment. So if you read the statement again, it states that you have to verify the impulse momentum principle for a jet of water striking on 90, 120 and 180 degree deflectors. So this is the first part of your experiment in which you will verify the principle. And whenever I say the verification, it means that whatever the parameter you are getting from your principle theoretically, same you should get from the experiment. Okay, so this is the verification of the principle. You will compare your experimental and theoretical results. Second is that you will investigate the effect of the velocity of the flow on the impulse force of jet on various deflectors. तो अभी ये डिफ्लेक्टर्स क्या हैं ये भी आपको आइडिया नहीं है, बट अभी हम इसे डिस्कस करते हैं फर्दर. तो डिफरेंट डिफ्लेक्टर्स पे उस फोर्स का क्या इफेक्ट है जो कि वेलोसिटी की फ्लो वेलोसिटी है उसका क्या इफेक्ट है, वी विल डिस्कस दैट फर्दर. द ऑपरेटर्स व्हिच यू विल नीड. अच्छा ये प्लीज देखें, दिस स्टेटमेंट समराइज द ऑब्जेक्टिव्स एंड यू हैव टू मेन ऑब्जेक्टिव्स. वन इज दैट यू विल verify the principle. It means that you will compare your experimental and theoretical results. And the second is to affect the study of the flow velocity on various deflectors. ठीक है, अभी second statement में भी आपको इतनी clear नहीं है, but it will be clear to you when we will further proceed with the discussions. The operators which will lead, that is the impact of the jet operators with the deflectors
The deflectors which you will use particularly, those are 90, 120 and 180-degree deflectors. You can have deflectors other than these, but these three are the one which you are using particularly. And further impact of jet operators with the reflector, this instrument itself is used to obtain the set objectives. तो ये इंस्ट्रूमेंट बेसिकली आप लोग भी कह सकते हैं कि जो आपके एक्सपेरिमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एक्सपेरिमेंट की स्टेटमेंट है, दैट इज बेसिकली derived from the capacity of that operators that you will use. तो आपके इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी है कि वो आपको ये ऑब्जेक्टिव्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है. Next, you need the hydraulic bench. Hydraulic bench, you know that it is a container which is having the water in it, and you are installing your operators over that, and the water is basically circulating through the tank into your operator for instrument. So basically, this is providing the supply of the water. Next, you need the stopwatch. Sorry, this is number 3. You have a typing mistake over here. So this is number 3. You need the stopwatch. That will be used to measure the time of the collection for the defined volume, and that will ultimately give you the discharge. And finally, you have the thermometer. Thermometer is used to measure the temperature. ये मैंने आपसे last time भी discuss किया है in detail that theoretically you need the temperature of the fluid, which is water in your case. Unless you are maintaining certain conditions of the temperature for the fluid in the experiment, you can assume that the temperature of the surrounding is same as that of the temperature of the fluid. आप दोनों का same assume कर रहे हैं. But अगर आपका एक्सपेरिमेंट इस तरह से है जिसमें आप फ्लूइड को हीट कर रहे हैं या फ्लूइड को कूल डाउन कर रहे हैं, then in that case obviously you cannot use that assumption. You have to use the thermometer directly for that fluid and you will measure the temperature in that case. Okay, so in this case you will assume that temperature of the fluid is same which you have for the surrounding. So you will be given with the room temperature to further carry out the calculations. आपने जो भी properties water की use करनी है अपनी calculations में, you will make sure that they are not the standard values 1000, 9810 या जो भी properties हैं. Don't use a standard one. Use the one which is for that particular temperature. Now next we will discuss the impulse momentum principle. This is your basic topic in the relevant theory, and today you have to verify this principle, that is impulse momentum principle. Now read the statement. It states that the algebraic sum of all the external forces acting on the control volume of the fluid is equal to the rate of change of the momentum. Now you have two parts in this definition. First is the algebraic sum. It means that you are considering the forces with their signs. आप sum find करेंगे, it means you will find out the net force. And second is the momentum. What is momentum? That is simply m into v. Okay. M is the mass of the particle and v is the velocity of the particle. Now, if you see on the right side, I have drawn a tentative control volume. अभी हम इस पे further discussion करते हैं. But just assume that assume करने के जो laser का pointer है, that is the one fluid particle. This fluid particle can be acted upon by forces from different directions. आप assume करें कि इस particle पे दो forces लग रही हैं along the x direction, and one is more in magnitude and other is less in magnitude. Now both forces are acting in the opposite direction. ठीक है, तो net force आपकी कौन सी होगी? If you are taking the algebraic sum of these two, the net force will be the difference of these two, और उसकी direction जो higher magnitude वाली force है उसकी direction में होगी, right? Now apply this concept of the net force on the momentum. अब अगर आप assume करेंगे इसी particle पे, which I am assuming जो आपका जो pointer है, assume that it is a particle of the fluid. अब इसी particle पे अगर दो forces act कर रही हैं, what will happen? The applied force will cause a particle to move. Okay, mass तो नहीं change हो रहा particle का, because we are assuming it to be constant, unless otherwise under certain circumstances mass भी शायद change होता हो, लेकिन normally the average mass of the fluid bulk will remain same. But if you apply the force, then that will change its velocity. अब अगर velocity change हो रही है particle की तो क्या हो रहा है? The momentum is changing. The momentum is increasing in that particle. Now combined
two concepts which we have discussed till now. If you are applying two different forces from two different directions on a fluid particle, those two forces will create a moment according to the magnitude of the applied force in that particle. एक फोर्स अप्लाई करिए, एक फोर्स अप्लाई हो रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और वो उस डायरेक्शन में मोमेंटम जनरेट कर रही है. एक फोर्स है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में और वो उस डायरेक्शन में मोमेंटम जनरेट कर रही है. नेट मोमेंटम क्या होगा? नेट मोमेंटम विल बी रिस्पेक्टिव टू द नेट फोर्स. ठीक है, और मोमेंटम की डायरेक्शन भी कौन सी होगी? जो कि लार्जर फोर्स की डायरेक्शन है. सो दिस इज द basic concept around this impulse momentum principle. Now consider this control volume. Control volume is, in simple words, your study volume. And if you see, I have shown different forces which are acting on this control volume. Every applied force is acting from different direction and it will generate a certain momentum in the fluid volume. ठीक है, अब नेट मोमेंटम कौन सा होगा? नेट जो रेट ऑफ मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड करेगा? दैट विल डिपेंड अपॉन द नेट रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स. सो दैट इज योर इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल. तो अब दोबारा से डेफिनेशन एक दफा रीड करते हैं. यू विल गेट द क्लियर आइडिया अबाउट दिस. इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम. तो जो भी नेट फोर्स है उसकी डायरेक्शन में आपका नेट मोमेंटम जनरेट होगा. ठीक है, दोनों फोर्सेस अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो वो दोनों मोमेंटम जनरेट कर रही हैं. नेट मोमेंटम कितना रहेगा उस वॉल्यूम में वो डिपेंड कर रहा है कि नेट फोर्स का डिफरेंस कितना आपके पास आ रहा है. नाउ दिस इज द इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल. आपकी जो हाइड्रोलिक मशीनरी है, आपके जो हाइड्रोलिक्स के बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस प्रिंसिपल पे एक्ट कर रहे हैं, इस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं. हाइड्रोलिक मशीनरी में टरबाइंस हैं, पंप्स हैं, दीज आर वर्किंग ऑन दिस प्रिंसिपल. ठीक है, इसलिए हम लोगों ने थ्योरी में ये मशीन्स कवर करनी है, बट बिफोर दैट वी विल कवर द टॉपिक ऑफ दिस दैट टू हैव द क्लियर आइडिया कि व्हाट इज दिस बेसिकली द प्रिंसिपल, व्हाट इज दिस इंपैक्ट फोर्स ऑफ जेट. बाकी सारे आपके जो डिस्कशंस हैं थ्योरी में, टॉपिक्स हैं, वो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में है. Now you have to develop the relation for this, and to develop the relation, consider this basic equation given by Newton's. Sorry, that is summation of F is m into A. Okay, so summation of क्या है? That is your algebraic sum of the forces. This is a very important factor in this case. M is the mass of the particle and A is the acceleration due to gravity, which is your rate of change of the velocity. Now, in this case, when you are considering the impulse momentum principle, you are mostly dealing with the velocity. So that is why you are replacing this A in terms of the rate of change of the velocity. Now, further, you can rearrange the parameters in this equation. You can write this M in terms of M over dt, and this dV will come as it is. See the next slide. मैम आपका माइक म्यूट हो गया. जी जी बेटा, मैंने असल में स्लाइड मूव आके करी थी इसलिए मैंने म्यूट किया. ठीक है, आ रही है अब? यस मैम. हाँ जी, तो ओके. सो यू आर बेसिकली रीअरेंजिंग द इक्वेशन. आप ये देखें, आई हैव रिटन द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m ओवर dt इंटू dv. व्हाट इज दिस m ओवर dt? ये फिजिकली आपको क्या मीनिंग दे रहा है? दैट इट इज द अमाउंट ऑफ द फ्लूइड मेजर्ड इन मास. मास के यूनिट्स में आप मेजर कर रहे हैं, मास है आपका इन शॉर्ट, which is passing through any section per unit time. Okay, and it is not wrong if I call this m over dt as mass flow rate, amount of the fluid in mass passing through any section per unit time. ठीक है, if you remember, if you can recall, आप लोगों ने FM1 में different flow rates पढ़े थे. You have studied weight flow rate, mass flow rate, and the volume flow rate. Volume flow rate is that amount which we usually use in terms of Q, discharge जिसको कहते हैं. Okay. Second is the mass flow rate, which is capital M, and the third one is the weight flow rate, which is W. So this M over dt over here is that mass flow rate, which is your
capital M. And if you see further, I have replaced this M over dt as capital M, the mass flow rate. And dv is the change in the velocity. Also, you have different equations जो कि m को और जो आपका वेट फ्लो रेट है जिसका सिंबल g है, ठीक है, थोड़ा सा आपको रिकॉल करना पड़ेगा, आपने FM1 में चीजें कवर की हुई है। मैथ फ्लो रेट का सिंबल है कैपिटल M और वेट फ्लो रेट का सिंबल है कैपिटल G. You can relate both of these, okay? So M और Q का relation क्या है? That M is equals to rho into Q, which you can see is written in the next equation. So M को replace किया है with rho into Q. So that depends upon the data. If in the data you are given with the mass flow rate directly, अगर आपको directly M की value given है, you can use M. अगर M की value given नहीं है और आपने find करनी है with a discharge, then replace that M with rho into Q. Usually you are not given with a mass flow rate, you are given with a discharge. So better is to write down the equation in terms of rho into Q. Okay. Now what is this dv? This is the change in the velocity. Now from here, please listen to this very carefully. We will consider the signs or we will consider the directions. We have discussed the definition with the help of the control volume over which number of the forces are acting from different directions. ठीक है? आप इक्वेशन जब समराइज कर रहे हैं, यू कैन सिंप्लीफाई द इक्वेशन फॉर द फोर्सेस व्हिच आर अलोंग द एक्स डायरेक्शन, फॉर द फोर्सेस व्हिच आर अलोंग द वाई डायरेक्शन, और कंट्रोल वॉल्यूम में आपके पास इन बिटवीन भी एंगल्स पे भी फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। तो जितना आपका कॉम्प्लेक्स वॉल्यूम है उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपकी इक्वेशंस की एप्लीकेशन में भी है, क्योंकि उतनी ही डायरेक्शंस में आपने वो फोर्स अप्लाई करनी है। Now to make it easy to understand, when we will start with the discussion कि equations आपने apply कैसी करनी है different direction में, we will consider only one direction. Okay, understanding के लिए सबसे पहले आप ये figure देखें on the right side. This equation shows the case in which you will apply the equation only along the x direction, and the second figure shows a case in which you are applying the equation only along the y direction. ठीक है, अभी हम इसको further discuss करते हैं कि ये क्या है आगे, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखें, if you see the first figure, you are having a pipe at the end of the which a nozzle is connected. Water is coming out from that nozzle in the form of the jet and that is striking on a flat plate. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास मोमेंटम प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है क्योंकि आपका जो जेट है that will have a certain force. अगर आप कोई भी सरफेस उस जेट की डायरेक्शन में रखेंगे, that jet will exert a force on that. ठीक है, अब आपने वो फोर्स मेजर करनी है, you have to measure the impact force of jet. Now please listen to this very carefully. What is the basic concept in determining that force? आपने फोर्स फाइंड करनी है जो फोर्स आपका जेट अप्लाई कर रहा है आपकी प्लेट के ऊपर. You can do that indirectly by applying the concept of equilibrium condition. अगर ये फर्स्ट फिगर में मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपका सारा सेटअप जो है वो इक्विलिब्रियम में है, बट अगर जितनी फोर्स आपका जेट अप्लाई कर रहा है आपकी प्लेट पे, द इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इज अप्लाइड बाय द प्लेट ऑन द जेट. दैट इज व्हाई योर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो इस केस में जो माइनस एफ है, सॉरी जो एफ लग रहा है प्लेट के ऊपर जी, बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन हुई है, तो ये फिगर प्लीज दोबारा समझा दें. हाँ मैं बताती हूँ. इस फिगर में आप ये देखें, I have told you that you are having a jet which is coming out of the nozzle and it is impacting a certain force on the flat surface जो कि उसकी वे में आपने प्लेस की हुई है. ठीक है, that is a flat plate in this case. आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, that you have to measure what is the force which this jet is applying on the plate. आपने ये फोर्स फाइंड करनी है जो कि ये जेट इस प्लेट के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है. अब आप फाइंड कैसे करेंगे, यू हैव इनडायरेक्ट वे फॉर दिस. आप अज्यूम करें कि सेम और इक्वल फोर्स आपकी प्लेट भी जेट के ऊपर अप्लाई कर रही है फोर्स. ठीक है, जितनी फोर्स आपका जेट अप्लाई कर रहा है प्लेट पे उतनी ही फोर्स आपकी प्लेट भी अप्लाई कर रही है जेट के ऊपर. कंसिडरिंग दैट योर होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, दिस इज योर इनडायरेक्ट वे ऑफ कंप्यूटिंग द जेट फोर्स. और वो वाली फोर्स है आपकी ये एफ फोर्स. ये वो फोर्स है जो कि आपकी प्लेट एक्सर्ट कर रही है जेट के ऊपर. ठीक है, और ये किसके इक्वल है,
फोर्स के जो कि जेट की फोर्स है. So remember that this is your way to determine the jet force. कि आप equal और opposite force consider कर रहे हैं which is applied by the plate on the jet. Now what is this section 1 and what is this section 2? अभी तक मैं application क्या कोई cases जरा clear हो जाए. What is the section 1 and what is section 2? Section 1 is that section from where the jet is leaving the nozzle, and section 2 is that section where the jet is striking the plate. You are defining these two sections because the volume of the fluid between section 1 and section 2 is your control volume. क्या आपका control volume इस केस में वो volume है water का जो कि 1 और 2 के in between है. So you are applying your equation between these two sections. Same is the case for this condition when your jet is vertical. ठीक है, अब आगे फर्दर हम देखते हैं कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है. इन योर फर्स्ट केस योर जेट इज हॉरिजॉन्टल, योर फोर्स इज हॉरिजॉन्टल. तो ये वो केस है जहां पे इक्वेशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लगनी है. सेकेंड केस में आप ये देखें योर फोर्स इज वर्टिकल. ओवर हियर यू हैव टू अप्लाई द इक्वेशन ओनली अलोंग द वाई डायरेक्शन. These are the cases which are not complex and have only one direction of the case. में सिर्फ एक डायरेक्शन में फोर्स लगनी है. हम लोगों का जो बेसिक कंसर्न डायरेक्शन है फोर्स की दैट इज वाई, क्योंकि आपके केस में जो आपका इंस्ट्रूमेंट है जो ऑपरेटर है दैट इज हैविंग अ वर्टिकल जेट. तो यू आर बेसिकली डीलिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ द इक्वेशन अलोंग द वाई डायरेक्शन. ठीक है, तो अब आप ये देखें आगे इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया हुआ है बाय अप्लाइंग द इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन इन द वाई डायरेक्शन. व्हाई? बिकॉज इन योर केस योर इंस्ट्रूमेंट is having a vertical jet. That is why. So this is summation of forces along the y direction. Rho into q is coming from m and this dv is a change in the velocity 1 और 2 पे जो भी component है velocity का along the y direction, आप इन दोनों का difference ले लें. तो make sure आप जिस direction में equation apply कर रहे हैं आप उसी direction में हर पैरामीटर के कंपोनेंट्स ले रहे हैं. इट मींस दैट f इज आल्सो व्हिच इज अलोंग y एंड वेलोसिटीज के भी आपने वो कंपोनेंट्स लेने हैं जो कि y के अलोंग है. ओके, सो दिस इज योर इक्वेशन. नाउ वी विल फर्दर सिंप्लीफाई दिस. नाउ वी विल फर्दर सिंप्लीफाई दिस. इसके लिए सबसे पहले आप ये साइन कन्वेंशन देख लें. दिस इज वेरी सिंपल. बिल्कुल जो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के ऑर्डिनेट्स हैं वही साइन कन्वेंशन है यहाँ पे. ठीक है, the velocity and the force along positive x and positive y are positive. Similarly along negative x and negative y these are negative. इसकी efficiency या इसका effect क्या है? That it will give you the idea कि आपकी जो velocities और f की directions हैं either you have to consider them with plus sign or with negative sign. Now if you apply the impulse momentum equation on the second case where you have a vertical jet, आप ये देखें summation of forces along y, आपके पास फोर्स कौन सी आ रही है? माइनस एफ. ठीक है, माइनस एफ कैसे आ रही है? बिकॉज यू आर हैविंग ओनली वन फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो इट इज माइनस एफ. रो इनटू क्यू इज कमिंग एज इट इज. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू आर गेटिंग दिस 0 माइनस v. v2y. If you see at section 2 you don't have any component of the velocity along y because whole jet is reflected at 90 degree in the horizontal direction. Section 2 पे y के along आपके पास कोई भी velocity का component नहीं है, इसीलिए इस केस में your v2y is totally 0. But what is v1y? If you see at section 1 the whole velocity is along y. आपका jet initially inclined नहीं है. ठीक है, वो totally along y ही है. So whatever is your incoming velocity v, that is equals to v1. So v1y is actually your v. If you rearrange the equation, if you simplify the equation, you are getting this rho qv, and this is your theoretical force because you are computing the amount of the force by solving this equation. So yeah, it's theoretical force. You can further simplify this by writing this q in terms of a into v. This a is the area of the jet and v is the velocity of the flow, which is the velocity of the jet. So it is rho a v square.
Now, if you link this equation with this case, this equation is giving you the force of the jet on a 90-degree deflection plate. इस केस में आपका जो जेट है वो 90 के एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है. Okay? तो ये इस केस में जो आपने प्लेट कंसिडर की है, दैट इज योर 90-degree डिफ्लेक्टर. So deflector is nothing. Deflector is any surface which is deflecting your jet from its initial direction. So it can be any type of the surface. तो इस केस में ये प्लेट भी एज अ डिफ्लेक्टर ही वर्क कर रही है. अब ये एंगल कौन सा है डिफ्लेक्शन का? 90. इनिशियली आपका जेट वर्टिकल है एंड यू आर डिफ्लेक्टिंग इट at 90 degree from the initial angle, so that is why it is coming to be exactly horizontal at section 2. Clear है? So this is the basic concept about your impact force of jet or impulse momentum principle. अब आपने इसी को अप्लाई करना है आगे फर्दर. आगे मैं स्लाइड्स मूव करती हूँ. लेट्स सी. So we will just review what is a nozzle, what is a jet. The nozzle is a diverging tube which is fitted at the end of the pipe, and the water or any fluid which is coming out from that nozzle, it will be in the form of the jet. Okay, jet क्या है? That is a liquid trajectory which is coming out from the nozzle. And what is a deflector? As I have said, it is a device which is deflecting your fluid or water at any desired angle. It can be available in different shapes or angles, for example 90, 120 and 180 degree. What are these angles? Make sure a 90-degree deflector means it is deflecting your jet from its initial direction to 90 degree. ठीक है, तो इनिशियली अगर आपका जेट वर्टिकल है तो 90 पे डिफ्लेक्ट करके उसे टोटली हॉरिजॉन्टल कर रहा है. 120 मींस व्हाटएवर इज द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ योर जेट, इट इज डिफ्लेक्टिंग योर जेट एट 120 डिग्री फ्रॉम दैट रेफरेंस एक्सिस. अगर आपका जेट 180 है तो वो आपके जेट को विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल एक्सिस 180 पे डिफ्लेक्ट कर रहा है. सो दिस इज योर कंडीशन ऑफ द डिफ्लेक्टर. Now these are your 3 deflectors. If you see the first one, आप ये first वाला देखें जरा. This is your deflector which is having a flat surface at the top. ये 90 का deflector. Second one is a 20-degree deflector, and third one is 180-degree deflector. Okay, now you have to develop the equations for these deflectors. ये आपके बेसिकली सेकेंड ऑब्जेक्टिव को सप्लाई कर रहे हैं, उसको हेल्प आउट कर रहे हैं. आपने स्टडी करना था कि डिफ्लेक्टर की एंगल्स को चेंज करने से जो फोर्स आप निकाल रहे हैं जेट की, उस पर क्या इफेक्ट आएगा. ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? यू आर डेवलपिंग द न्यूमेरिकल रिलेशंस. आप इक्वेशन सिंप्लीफाई कर रहे हैं हर डिफ्लेक्टर की. उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि उससे आपको ये आइडिया होगा कि डिफ्लेक्टर के एंगल्स चेंज करने से व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फोर्स. Now see this figure. This figure is similar to what I have already discussed with you, क्योंकि ये 90 के डिफ्लेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. एक फ्लैट प्लेट है जो कि आपके जेट को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पे डिफ्लेक्ट कर रही है. ठीक है, अब इस केस में व्हाट इज दिस F? This F is the force which is acting on the jet by the deflector, which is exactly equal and opposite to the force of impacted on the. So ये आपका indirect way है जेट की फोर्स फाइंड करने का. You are assuming that same force is applied by the plate on the jet. Now your jet is vertical, तो आप इक्वेशन अप्लाई करेंगे along the y direction. So you are applying the equation along the y direction. ये देखेंगे बिल्कुल वही स्टेप्स हैं जो आपने भी किए हैं पहले. Now in the previous discussion we have simplified the equation at this stage और हमने x की इक्वेशन जनरेट कर ली थी. बट आई एम नॉट डूइंग दैट एट दिस स्टेप नाउ, क्योंकि आपके पास अब सिर्फ 90 का डिफ्लेक्टर नहीं है. यू हैव द डिफ्लेक्टर फॉर 120 एंड 180 एज वेल. सो व्हाट वी विल डू, दिस सिंप्लीफिकेशन इज वेरी इजी फॉर 90 डिग्री. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिकली देख के पता चल रहा है कि यू डोंट हैव एनी V2y ओवर हियर एंड टोटल V1 इज योर V.
but it will not be that easy in the other cases. So what we are intending to do, we will develop a general equation which can easily give you an idea about the forces for the other deflectors. So what I am doing over here, I am writing an equation in terms of cos of theta. Why cos of theta? See the second figure. This figure shows that your V is inclined at some angle. That angle is theta. You are measuring theta with respect to the y-axis. Why? Because your reference axis is y in this case. ठीक है, और अगर आप theta all the time with respect to y measure कर रहे हैं, then its y component is v cos of theta and its x component is v sin of theta. It means that it means that in this equation you can write down this v2y as v2 cos of theta 2 and this v1y as v1 cos of theta 1. ठीक है, तो आपने क्या किया है, आपने इन इक्वेशन को थीटा की फॉर्म में लिख लिया. Instead of directly writing the value as 0 or v, you have written the value as v1 cos of theta 1 and v2 cos of theta 2. Okay. Further आप assume करें. जी जी जी, थीटा तो सेम नहीं रहेगा, थीटा 1 और थीटा 2 थीटा नहीं रहेगा. थीटा नहीं, थीटा 1 मैं आपको बताती हूँ. थीटा 1 एंगल है जो कि आपके जेट का इनिशियल एंगल है, क्या थीटा 1 है. जहां जैसे थीटा 2 वो एंगल है जो कि आपका जेट डिफ्लेक्ट होने के बाद बना रहा है. रिस्पेक्ट आपके सारे केसेस में थीटा 1 सेम है क्योंकि आपका जेट हर केस में वर्टिकल है, तो वो सेम है. लेकिन थीटा 2 हर केस में चेंज हो रहा है क्योंकि आपका डिफ्लेक्टर चेंज हो रहा है. ठीक है, तो जो भी आपका डिफ्लेक्शन एंगल है आपका थीटा 2 उसके रिस्पेक्टिवली आएगा. 90 के केस में आपका थीटा 2 90 होगा, 120 के केस में आपका थीटा 2 120 है और 180 के केस में थीटा 2 180 है. ठीक है, तो वो चेंज हो रहा है. आगे जरा सिंप्लीफिकेशन देखें. नेक्स्ट ईयर सिंप्लीफिकेशन, ये आपकी एक मेजर असम्पशन है. इन दिस केस आप अज्यूम कर रहे हैं दैट योर v1 एंड v2 आर सेम. ठीक है, अब ये असम्पशन आपको क्या बता रही है, दैट यू डोंट हैव एनी लॉस व्हेन द फ्लूइड इज मूविंग फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2. अब ये एक मेजर पॉइंट हो सकता है इफ योर रिजल्ट्स आर नॉट कमिंग एज दे शुड बी. अगर आपका प्रिंसिपल वेरीफाई नहीं हो रहा ना इन पे, अगर आपकी एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल फोर्स इक्वल नहीं आ रही, देन यू कैन कमेंट ऑन दिस पॉइंट कि आपने ये अज्यूम किया है कि आपके दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, but actually they are not, क्योंकि whenever the flow will take place you will have some losses. Okay? इस केस में to make it easy to solve the equation you are assuming that these two are equal. So this is a further simplification. इसको आप देख लें. Fine. At the end the variables are your theta 1 and theta 2. Okay, now further see. मैम अब आप जी जी ठीक है, थीटा 290 होगा ना इसमें. हाँ जी बिल्कुल, हाँ वो देखें आगे आ गया. क्या इस ठीक. केस में थीटा 1 आपका 0 है, लेकिन थीटा 2 आपके डिफ्लेक्शन एंगल के साथ साथ अब वेरी कर रहा है. अब इसी का एडवांटेज ये है ना, आपने एक जनरल इक्वेशन डेवलप कर ली है इनिशियली. अब जो भी आपका डिफ्लेक्शन एंगल है, पुट द वैल्यू ऑफ द डिफ्लेक्शन एंगल और आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी. आपको इनिशियली खुद से सारी सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी है. So in this case, so theta 2 is 90 and theta 1 is 0. Cos of 90 is 0 and cos of 0 is 1. And finally, your equation is coming to be rho QV. अब ये equation बिल्कुल वही है जो आपने initially develop की थी, जहाँ पे हमने equation की application देखी थी कि कैसे करनी है. ठीक है? And further, this is your theoretical force, so it is rho QV. अब मैं और के लिए स्लाइड दिखा रही हूँ. सी का स्लाइड बिल्कुल इस स्टेप है. ठीक है, so take 2 minutes
और उनको जरा खुद से देखें कि क्या आपने सॉल्व किया हुआ है। तो ऑल द स्टेप्स ओवर हियर आर सेम, सिर्फ ये फिगर जरा आप देखें, फिगर हर डिफ्लेक्टर के डिफरेंट है एंड रिस्पेक्टिवली योर थीटा 2, रिमेनिंग ऑल द स्टेप्स आर सेम। अब इसका एडवांटेज क्या है कि अगर आपको इन तीनों डिफ्लेक्टर्स के अलावा कोई और डिफ्लेक्टर दे देते हैं, से आई एम आस्किंग यू टू राइट फॉर एंगल चेंज करना है, ठीक है। यू कैन देखिए आप, आई विल मूव द स्लाइड, फिर बाकी आप आगे देखिए कि फाइनली आपके पास सोर्स क्या आ रही है। ये स्लाइड मैंने मूव किया, नेक्स्ट आप देखें आपको शो हो रही है योर थीटा 2 इन दिस केस विल बी 120 and finally the force which you are getting, that is 1.5 times of rho qv because cos of 120 is minus 0.5. so what does this indicates? ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि जैसे जैसे आप डिफ्लेक्शन एंगल इंक्रीज कर रहे हैं, जब आपने 90 से 120 पे इंक्रीज किया है एंगल, आपकी जो फोर्स है वो भी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। इट इज नाउ 1.5 टाइम्स ऑफ रो क्यू वी। अब आपने 180 के लिए काम करना है, 180 की आप फिगर देखें और मुझे बताएं, ये सारा स्टेप्स देखें, दिस इज एग्जैक्टली सेम जो आपने इनिशियली किया है। मुझे आप ये बताएं कि व्हाट शुड बी द फोर्स फॉर 180? इट शुड बी ऑब्वियसली मोर देन दैट ऑफ 90 एंड 120। जरा स्टेप्स देखें, फिर हम आगे देखते हैं फाइनली की इक्वेशन आपके पास क्या आ रही है। Let me show you the equation. See, it is 2 times of rho qv. So what does it shows? As you are increasing the deflection angle, the force of the jet is also increasing. ये आपका second objective है of the experiment. अब आप ये देख लें, V2 की डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन ऑफ V2 इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू V1, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो एंगल 180 का शो किया है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसीजर का एडवांटेज क्या है? यू डोंट नीड टू हैसल अबाउट द कैलकुलेशंस, आपके पास बेसिक स्टेप्स हैं, जस्ट चेंज द एंगल थीटा टू वैल्यू। अच्छा, इसमें एक और चीज आप इस पॉइंट को याद रखें कि आपके पास आपके मैनुअल में यू डोंट हैव एनीथिंग रिटन रिगार्डिंग द डिफ्लेक्टर्स, ठीक है। डिफ्लेक्टर्स की ये जो डेरिवेशंस हैं ये आपके मैनुअल में नहीं है, सो बेटर इज यू रेफर दी स्लाइड्स। और अच्छा ये है कि आप इन सारी डेरिवेशंस को अपने मैनुअल पे, वो जो ब्लैंक पेज आपके एक साइड, so that you know when you are preparing for your evaluation that this is the missing data which you have to complete from this. तो ये आपको आना चाहिए। अगर मैं आपसे किसी और डिफ्लेक्टर के लिए कह देती हूँ कि टेल मी द इक्वेशन ऑफ द फोर्स, यू शुड बी एबल टू राइट डाउन दैट इक्वेशन, ठीक है। तब आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि 30 के लिए फोर्स लिखें तो वो ऑब्वियसली 90 वाली फोर्स से कम होगी, उसका जो फैक्टर है इनिशियली वो 1 नहीं होगा, वो 1 से भी कम होगा, ठीक है। तो अब आगे इसको हम जनरलाइज कर लेते हैं। Okay, so you can write down this equation generally in terms of K times rho QV. Rho QV is same expression in all the deflector equations, only K is varying. K is a constant factor that is dependent upon the type of the deflector. It is 1 for 90 degree, it is 1.5 for 120 degree, and it is 2 for 180 degree deflector. अब 45 के लिए क्या होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन 1। 30 के लिए क्या होना चाहिए? इट शुड बी लेस देन वट एवर यू आर गेटिंग फॉर 45 डिग्री। 45 के लिए आई गेस ये 0.8 या 0.9 समथिंग आता है, ठीक है। तो 30 के लिए वो उससे भी कम होगा। आप फाइंड कर सकते हैं कि ये कितने आ रहे हैं। तो what you can conclude that with increase in the angle of the deflection, the theoretical force of the jet is also increasing. Experimentally you can expect some variations, क्योंकि experimentally आपके पास observational error हो सकते हैं, तो that is a due point in this, ठीक है। लेकिन theoretically what is a theoretical trend? That is your
force is increasing with the increase in the deflection angle. Now next is your impact of jet operators. So this operators is basically serving all the objectives of this study. So it is a very simple operators which is directly measuring the impulse force of the jet by an equivalent weight placed in the pan. It is very important term statement. हम लोगों ने अभी तक की डिस्कस किया है कि आप जो जेट की फोर्स है उसको इनडायरेक्टली मेजर कर रहे हैं बाय कंसीडरिंग द फैक्ट दैट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स इज अप्लाइड बाय द प्लेट ऑन द जेट. ठीक है. अब इस एक्सपेरिमेंट में आप फिजिकली ये अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट. यू विल मेक श्योर कि आप प्लेट के थ्रू जेट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है डेरिवेशन के लिए वो हम सारी फिजिकली इसमें अप्लाई करेंगे. ठीक है. तो आगे फर्दर फिगर 2.1 और 2.2 डिफरेंट व्यूज शो कर रहे हैं एंड दीज आर दी कंपोनेंट्स. ये मैं आपको नेक्स्ट फिगर से जरा क्लियर करती हूँ, वहां से आपको क्लियर हो जाएंगे. Figure 2.1 shows that your instrument is attached over the hydraulic bench. ठीक है. आप ये देखें आपका जो सारा लेआउट है इंस्ट्रूमेंट का वो वर्टिकल है. You are having a vertical jet. And this figure number 2.1 shows that your instrument is connected over the hydraulic bench. अब ये figure number 2.2 इस स्लाइड में जो मैंने अटैच की हुई है it is not the same which you have in the manual. मैंने उसको रिप्लेस किया है because it is figure. So it will help you to understand the components easily as compared to the simple figure. जिससे string or string and prove it. Electric port screw. Draw करके अटैच. So make sure you have to draw it by yourself in your manual and that is your figure number 2.3. आपने अपने मैनुअल में ये फिगर यहाँ से देख के ड्रॉ करनी है. ठीक है. So please draw this figure neatly. If you are not clear about any component name, refer the previous figure or you can ask me. Otherwise, I have tried that at least all the components are visible to you. Figure is visible to you. Okay. Now let's see the procedure. These are the simple steps. You will initially level the operators. अभी इन steps को एक दफा पढ़ लें and then I will show you the video and then you can have the complete idea about the performance. So initially you will level the operators at the zero loads and zero flow rates. Adjust the position of the pointer. Switch on the place a load of 300 gram and gradually open the valve till the collar reaches its original position. Note down the time t to collect the known volume. You will repeat the steps for different loadings and then you will switch off the motor of the pump. So it is a very, very simple experiment. अभी मैं आपके साथ दिस वीडियो ओके. कैन यू हियर इट साउंड? आपको इसकी आवाज आ रही है? नो मैम. क्लास आपको नहीं आ रही? ओके. आपकी वीडियो में इसकी साउंड है. मैं इसके अलावा ठीक है. ओके. मैं इसको आपके साथ सेपरेटली भी शेयर कर दूंगी सो दैट यू कैन गो थ्रू विद द वीडियो इजीली. अभी फिलहाल मैं आपको बताती चाहती हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसमें. ठीक है. तो ये YouTube पे इसका लिंक शेयर कर दें, वहां से देख लेंगे सब.
ये मैंने ना YouTube से, चले मैं वैसे आपके साथ शेयर कर दूंगी, मैंने डाउनलोड की हुई है तो ये मैं आपसे शेयर कर लूंगी लिंक। चलो मैं देख लूंगी, मैंने ना पेज से देखी थी, तो डायरेक्टली YouTube से तो नहीं मैंने देखी। वैसे मैंने डाउनलोड मैम कर ली जस्ट है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। चलिए मुझे ये मैं प्ले कर रही हूँ एंड देन आई विल टेल यू द पॉइंट्स वन बाय वन। Okay, so this is an inlet pipe through which the water is coming. और आप ये इंस्ट्रूमेंट देख लें, you are having a glass chamber in that you are having a nozzle which is connected at the pipe। अब ये देखें, ये आपके पास पैन है, ठीक है, जिसमें आप वेट्स प्लेस कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यू आर हैविंग दीज ओपनिंग्स जिसके थ्रू आप वाटर को डिस्चार्ज ऑफ करेंगे। अब ये है इनिशियल लेवलिंग। आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले अपने इंस्ट्रूमेंट को लेवल करना है, उसके पैन को लेवल करना है विद दैट लेवल गेज। ये इसमें डिफ्लेक्टर अटैच कर रहे हैं, 90 का अटैच कर रहे हैं, ये देखिए। दे आर कनेक्टिंग द इनलेट पाइप। इसके टॉप पे आई बबल है थ्रू विच यू विल डू द लेवलिंग। अभी कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, एक दफा आप ये वीडियो देख लें फिर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। ये देखिए आई बबल शो कर रहे हैं, दैट इज टू चेक द लेवलिंग। यू हैव प्लेस्ड द वेट फर्स्ट, फिर आपने वाल्व ओपन किया है। अभी देखिए वाटर का जेट एक्सर्ट कर रहा है फोर्स आपके डिफ्लेक्टर पे, और ये फाइनल शेप है वाटर की। जो वाटर उस चैम्बर में कलेक्ट हो रहा है वो डाउनवर्ड जो ओपनिंग्स हैं वहां से आप उस टैंक में कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए वाटर इन द टैंक, ये आप टैंक नोट कर रहे हैं उस टैंक पे होने का, और कितना वॉल्यूम टैंक में कलेक्ट हुआ है दैट कैन बी सीन जो गेज साथ अटैच था लेफ्ट साइड पे थ्रू दैट। फॉर द सेकंड रीडिंग यू आर इंक्रीजिंग द वेट्स इन इंक्रीमेंट्स, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। ये 120 का डिफ्लेक्टर है और ये वाला डिफ्लेक्टर है 180 का। ये कौन सा है? ये है आपका 30 का और ये है 45 का। वो 30 का शायद नहीं, 60 का था और 45 का। So when you are done with the experiment, remove the deflectors, अपने पाइप्स में से और इंस्ट्रूमेंट में से वाटर को रिलीज कर दें, रिमूव कर दें बिफोर द नेक्स्ट यूज। Now this is a recording in which you have taken the readings in the lab, तो इसको भी एक दफा go through कर लें। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द, वीडियो देख लें फिर मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ।
ओके क्लास, कैन यू सी द नेक्स्ट स्लाइड? ये देखिए सर, स्लाइड आपके पास नेक्स्ट शो हो रही है, टेबल ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस। नो मैम। अभी थोड़ा सा वेट No, करना, ma'am. यहाँ पे थोड़ा सा लैग आ रहा है। हाँ 1 मिनट आप थोड़ा सा वेट करना, ये थोड़ा सा लैग आया। लेट मी, हाँ जी आ गया, क्या अब आ गया? Yes, ma'am. Sure. हाँ जी, okay. So this is your table of observations and calculations. Before I start discussing this, कुछ points हैं regarding the performance, वो मैंने आपसे discuss करने हैं. First one is that you should always do the leveling of the instrument. That is very important. It will make sure कि आपका जो jet है या जो instrument है आपका exactly vertical है. Why it is important? आपने अपना जो जेट है वर्टिकल रखा हुआ है, इट मीन्स दैट यू हैव पुट योर θ1 एज 0 डिग्री। अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेवल नहीं है, देन व्हाट विल बी द केस? अगर आपका इंस्ट्रूमेंट लेवल नहीं है, इट मीन्स दैट योर θ1 इज नॉट एग्जैक्टली 0, जिसको आपने 0 पुट किया हुआ है। अगेन that will induce the error in your readings and observations, and you will not get the correct results at the end. आपका principal verify नहीं होगा, ठीक है? That is why leveling is very important. You can do the leveling from the foot screws and can be checked from the eye bubble present at the top. And second about the procedure. आपने पहले वेट्स, आपने इनिशियली अपने वो जो पेन था जिसके ऊपर आप वेट्स प्लेस कर रहे हैं, आपने उसके साथ उसको लेवल किया, एंड देन यू हैव पुट द वेट्स इन इंक्रीमेंट्स, और आप से आपने पहले 50 ग्राम्स का वेट रखा, आपने आपका जो पैन है दैट हैज मूव्ड डाउनवर्ड फ्रॉम द लेवल, ठीक है? आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपने जब पैन के ऊपर वेट्स रखे हैं ना, तो जो हमने इनिशियली अभी डिस्कशन में अज्यूम किया है कि आपकी प्लेट भी इक्वल और ऑपोजिट फोर्स अप्लाई कर रही है जेट के ऊपर, सो बेसिकली यू आर डूइंग दैट फिजिकली। जब आपने वेट रखा है पैन में, तो आप बेसिकली प्लेट के थ्रू, डिफ्लेक्टर के थ्रू अब जेट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल फोर्स। एंड व्हाट इज योर थ्योरेटिकल फोर्स? Theoretical force is that force which your jet is applying on the deflector. It means कि जो फोर्स जेट के थ्रू आ रही है, जो डिफ्लेक्टर को ऊपर मूव कर रही है, वो आपकी एक्सपेरिमेंटल फोर्स है, सॉरी दैट इज थ्योरेटिकल फोर्स। और जो फोर्स आप वेट्स के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं डाउनवर्ड, दैट इज एक्सपेरिमेंट, ठीक है? ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, इसीलिए आपने एक लेवल सेट किया है जो आपका लेवल गेज है, कि आपका पेन अगर उस लेवल पे है तो वो बैलेंस्ड है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आप दोनों फोर्सेस में से पहले कौन से फोर्स अप्लाई करेंगे, आइदर एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल। आपने दोनों को बैलेंस आउट तो करना है, इक्वल करना है, लेकिन डिसाइड करना है कि आपने पहले कौन से अप्लाई करनी है। अब आप अज्यूम करें कि आप पहले जेट की फोर्स अप्लाई करते हैं। इट मीन्स कि आपने वैल्व खोला रैंडमली फॉर सम क्वांटिटी, आपका वाटर आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ द जेट, दैट इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन द डिफ्लेक्टर, आपका डिफ्लेक्टर ऊपर, आपका पैन पर मूव, उसको बैलेंस आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू पुट वेट इन द पैन, कि आपका जो पैन है दोबारा से वो अलाइन हो जाए विद द लेवल गेज। ऐसे ही है, दिस इज द पॉइंट एट विच यू हैव प्लेस्ड द अमाउंट इक्वल ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फोर्स एंड द थ्योरेटिकल फोर्स। अच्छा, इस केस में एक ड्रॉबैक क्या है कि अज्यूम करें कि आपको एक्सपेरिमेंटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है थ्योरेटिकल फोर्स को बैलेंस करने के लिए, दैट इज से 50.5 ग्राम से। अब आपके पास 50 ग्राम का वेट है, वो आपने, लेकिन अभी भी आपका पैन थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि आपने 0.5 ग्राम का वेट अभी तक नहीं रखा। वो 0.5 ग्राम आपके पास नहीं है अगर, तो आइदर यू विल कंपनसेट ऑन दैट, यू विल से ओके इट इज अ वेरी लेस क्वांटिटी, यू कैन ignore this. If you don't know, फिर आप पॉसिबल है कि ग्राम का वेट रख दें अगर आपके पास 0.5 ग्राम नहीं है, बट अगर आर इंड्यूसिंग द एरर इन द रीडिंग्स बाय, ओके, इसमें चांसेस इस तरह के हैं दैट यू कैन गेट दिस इक्वेशन। लेकिन अगर आप रिवर्स प्रोसीजर करते हैं, जैसे आपने इस एक्सपेरिमेंट में किया है, आपने पहले वेट्स प्लेस किए हैं, ठीक है? इट मीन्स कि आप पहले एक्सपेरिमेंटल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फिर आप उसको बैलेंस कर रहे हैं, और फिर आप उसको बैलेंस करें विद द थ्योरेटिकल फोर्स।
इसके लिए आपने क्या, क्रिटिकल फोर्स आप सिंपली इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे, बाय ओपनिंग द वेल्व। तो वेल्व की ओपनिंग कंट्रोल करना इज वे मोर इजी एंड एक्यूरेट एज कंपेयर टू पुटिंग द वेट्स इन द पैन। अगर आपके पास कोई वेट नहीं है, मे बी यू विल इग्नोर दैट और यू विल पुट मोर वेट देन दैट। Okay, so that is why you are performing the experiment in the second order. You are putting the weights first. It means कि आप experimental force पहले अप्लाई करेंगे और फिर उसको theoretical force से बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, और कैसे चेक कर रहे हैं कि दोनों इक्वल अप्लाई हो गई हैं? दैट इज बाय दैट पैन। पैन के सेंटर में जो सिल्वर लाइन है वो आपके लेवल गेज के साथ अलाइन हो जाएगी। ठीक है, so this is your experimental procedure. Now, if you see the table, in your table of observations, you need the diameter of the jet that is equal to the diameter of the nozzle. It will be given to you, it is around 8 millimeters. उससे आप small a find करेंगे. Also, you will be given with the temperature, you will be given with the volume, and you will find out the rho value respective to that temperature. रो की वैल्यू डायरेक्टली 1000 मत यूज करें, जो भी आपका टेम्परेचर गिवन है आपको उसके रिस्पेक्टिव आपने रो की वैल्यू यूज करनी है। Okay? And then you can see the table of observations and calculations. You have 3 readings for one deflector. तो total आपके पास 9 readings का सेट है और readings में आपने सिर्फ mass नोट करना है grams में और आपने time of collection नोट करना है seconds में। तो आप ये देख लें, it is very easy. You are converting this mass from grams to kg. फिर उसको आप g से मल्टीप्लाई करेंगे, you will get equivalent force in Newton. Also, इस टाइम को आप पहले डिस्चार्ज में कन्वर्ट करें, दिस डिस्चार्ज इज कन्वर्टेड इनटू द वेलोसिटी एंड देन दिस थ्योरेटिकल। नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग इन द स्टूडेंट्स कि वो यहाँ पे थ्योरेटिकल निकालते हुए गलती करते हैं। व्हाट इज दिस के? दिस के इज द कांस्टेंट जो कि आपने अभी इनिशियली डिराइव किया है। इट इज 1 फॉर 90, 1.5 फॉर 120 डिग्री डिफ्लेक्टर एंड 2 फॉर 180 डिग्री डिफ्लेक्टर। ठीक है, ये के आपके ग्राफ से नहीं आना, जैसे आपने एक्सपेरिमेंट 1 में के निकाला है ना एंटी लॉग ऑफ सी करके, दिस के इज नॉट। सो रिमेंबर ये एरर होता है, so don't do this. Further you need log of f theoretical, log of f experimental and log of p। ये आपने क्यों निकाले हैं या आपको ग्राफ पे चाहिए? Let me show you the graphs and then we will discuss this. So this is your table for the tentative data. आपको डायमीटर गिवन है which is 8 millimeter. You are given with the temperature that is 29 degree centigrade. I have kept it same which is given to you for the last experiment. And these are your readings. You have total set of 9 readings and 3 for each deflector. You are given with the mass in grams and time in seconds. Okay, इसको use करें and fill out your table. Now the first graph which you will plot, that is serving your first objective. It means that you have to verify the principle. The principal verification simply means that you will compare your experimental and theoretical values. ठीक है, अगर आपकी सारी वैल्यूज इक्वल हैं एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल फोर्सेस की, means that your principle is very, but it's not to compare the read the table one by one. So what you are doing, you are plotting all the points on the graph के through आप easily एक general trend ले सकते हैं अपनी readings का. Also, you will write down the equation from this graph so that equation can easily summarize your readings. Now, if your experiment is completely verified, अगर आपका principle verify हो रहा है, then this is your ideal shape of the graph. आपका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और स्लोप जो है इसकी 45 डिग्री या 1 है. In this case, all the readings of the experimental and theoretical forces are same. Okay, it means that y is equals to x, जहाँ पे m1 है इक्वेशन में और c 0 है. But in your case, it will not be the condition. You will have some y-intercept along f experimental. ठीक है, ये intercept पास आ रहा है क्योंकि इनिशियली आपका जो पैन है दैट इज अटैच्ड ऑन करने में जाएगी एंड देन इट विल स्टार्ट टू ऑसिलेट अबाउट इट. तो कुछ फ्रिक्शन है जो कि आप इनिशियली मेजर नहीं कर रहे, दैट इज योर दिस सी इंटरसेप्ट इन द ग्राफ. Also, you will measure the slope of the points baseline. The slope can be slightly more or less than 1. अगर 1 भी आती है, but again your C will not be 0. So you can comment कि आपका principle verify हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक है. Now please make this thing very clear.
आपसे मैंने बार बार एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में भी कहा था, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट डोंट ट्राई टू जॉइन ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन। आपके सारे पॉइंट्स जो हैं दे आर नॉट इन द एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन, वो स्टैगर्ड हैं। सो ड्रॉ द बेस्ट फिट लाइन, और उस लाइन का ट्रेंड क्या है वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। ठीक है, तो आपने सारे पॉइंट्स को वन बाय वन ज्वाइन नहीं करना, you will not get the correct trend, so don't do this mistake, you will get confused। पॉइंट्स प्लॉट करें। सेकेंडली पॉइंट्स हैं वो बहुत क्लियरली विजिबल होने चाहिए, ये नहीं करना कि भाई हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है इसलिए हमने पॉइंट शो नहीं किए। नो, योर पॉइंट्स शुड बी वेरी क्लियरली विजिबल, और आपने उसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, फिर उससे आप स्लोप फाइंड करें और उससे आप सी फाइंड करें। ऑल्सो वन पॉइंट रिगार्डिंग योर बोथ एक्सपेरिमेंट्स, दैट व्हेन एवर यू आर फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द लाइन, कोशिश करें कि आप स्लोप के लिए वो 2 पॉइंट्स लें जो कि आपके उस बेस्ट फिट लाइन पे आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ की है ना, तो वो सारे पॉइंट्स को तो कवर नहीं कर रहा। तो कोशिश करें कि स्लोप निकालने के लिए वो वाले 2 पॉइंट्स यूज करें जो कि उस लाइन के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, also you will plot this graph only for one deflector, and that is 90-degree deflector। तो आपने एक ही डिफ्लेक्टर के लिए ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, ग्राफ प्लॉट करना है। इट मींस के टोटल 3 पॉइंट्स बस होंगे इस ग्राफ में आपके पास। ठीक है, okay, next graph is in between F experimental and V। This graph is serving your second objective, that what is the effect of the deflection angle on the velocity or on the force। ठीक है, तो आपने तीनों डिफ्लेक्टर्स के लिए ये कर्व प्लॉट किए, एंड यू कैन सी दैट विद इंक्रीज इन द डिफ्लेक्शन एंगल द फोर्स इज आल्सो इंक्रीजिंग। सो दिस इज योर सेकंड ग्राफ। अब थर्ड ग्राफ में आपने क्या करना है, आपने इस ग्राफ में जो 90 की कर्व है, आपने उस 90 की कर्व के लिए इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, और आपने लास्ट एक्सपेरिमेंट में ये पढ़ा है दैट यू कैन नॉट इजीली राइट डाउन द इक्वेशन फॉर अ कर्व। सो व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू राइट डाउन दैट इक्वेशन, कि आप उस कर्व को इक्विवेलेंट स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करें। एंड हाउ यू कैन डू दैट, सिंपली टेक द लॉग ऑफ द वैल्यूज अलोंग एक्स एंड वाई एंड देन प्लॉट द ग्राफ। फिर रिजल्ट में जो ग्राफ आपके पास आएगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, and same you are doing over here in your next graph। Your next graph will be in between log of f experimental and log of v, and you will do that only for 90-degree reflector। So this is your third graph। ठीक है, so you will measure the y-intercept c, you will measure the slope, and next you can write down the equation। equation लिखने के बिल्कुल वही steps हैं जो आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में देखे हैं कि आपने इक्वेशन कैसे लिखनी है। आई हैव शोन दैट इन योर नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, see the final equation at the end, 2.13 equation देखिए, that is your f experimental is k vm। अब इस केस में k क्या है, should it be 1? देखिए क्या होगा, क्या अगर आपने ये इक्वेशन 90 के लिए लिखी है तो क्या ये k 1 होना चाहिए, बताएगा कोई? दिस k इज नॉट 1। आप यही स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि अब इस कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि टेबल के अंदर k को एंटी लॉग ऑफ c से फाइंड करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ओके अगर हम 90 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं तो ये k भी 1 होगा। नो, in this case this k is coming from your graph, जिसे आपने c फाइंड किया है उसका एंटी लॉग लें, that is your k in this equation। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर डोंट डू सच मिस्टेक। बी वेरी क्लियर कि इन दोनों जो कॉन्स्टेंट्स है के उनमें डिफरेंस क्या है। इस जो आप ग्राफ के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं उसमें के ग्राफ से आ रहा है एंटी लॉग ऑफ सी से, और जो के आप इक्वेशन में लिख रहे हैं थ्योरेटिकल की, दैट इज कमिंग फ्रॉम योर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, दैट इज 1, 1.5 and 2। ओके, सो दिस इज योर इक्वेशन फॉर दिस। Okay, next we will discuss your results
तो इसमें जो रिजल्ट्स हैं, दे आर सिंपली द फॉर्म्स ऑफ द ब्लैंक्स which you have to fill. So the first one and theoretical for 90 डिफ्रेक्टर is shown in figure. तो यहाँ पे आपने फिगर नंबर लिखना है, ठीक है। अगर आप अपने मैनुअल में देखें, आपके जो ग्राफ्स हैं उनके नीचे भी एक सर्टेन फिगर नंबर लिखा हुआ है। तो जिस ग्राफ पे आपने एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल का ग्राफ प्लॉट किया 90 का, आप वो फिगर नंबर यहाँ लिख दें, ठीक है। एंड प्लीज मेक श्योर स्टूडेंट्स इस बात को बॉदर ही नहीं करते, बट ऑलवेज रीड द लेबल ऑफ द ग्राफ्स एंड फिगर्स। जो फिगर या जो ग्राफ आपने जिस पेज पे बनाना है, यू शुड ड्रॉ इट ओवर देयर। ये नहीं करना कि आगे पीछे अपनी मर्जी से बना ली है एंड यू विल से दैट इट डज नॉट मैटर। तो फिर लेबल भी बार बार काट के आप उसको रिमूव करें, ठीक है। तो कोशिश करें कि जो फिगर्स जिनके जो लेबल्स मेंशन हैं वो फिगर्स वहीं पे ड्रॉ करें, वो ग्राफ वहीं पे ड्रॉ करें। ओके, नाउ इन पॉइंट 2 you have to show that the graphical relation between f experimental and v and log of f experimental and log of v shown in figures dash and dash. तो इन दोनों ग्राफ्स के जो फिगर नंबर्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। ये आपके मैनुअल में लिखे हुए हैं, सो जस्ट सी के फिगर नंबर कौन सा है इन सारे ग्राफ्स का। थर्ड क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन एफ एक्सपेरिमेंटल एंड एफ थ्योरेटिकल फॉर 90 डिग्री डिफ्रेक्टर इज। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप इक्वेशन लिखेंगे, यू हैव डेवलप्ड एन इक्वेशन फॉर एफ एक्सपेरिमेंटल एंड एफ थ्योरेटिकल। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आपने प्लॉट किया, ये आप देखिए, हाँ जी ये देखिए, you will get an equation in terms of y is mx plus c। तो आपने ये इक्वेशन मॉडिफाई करनी है अपने डाटा के लिए। y को आप रिप्लेस करेंगे विद f एक्सपेरिमेंटल along x जो है f थ्योरेटिकल, c और m आप मेजर करें ग्राफ से, उसको लिखें। तो दिस इज योर इक्वेशन बिटवीन f एक्सपेरिमेंटल एंड f थ्योरेटिकल फॉर 90 डिग्री डिफ्रेक्टर। सो दिस इज योर फोर्थ रिजल्ट। Sorry, that is your third result. Fourth क्या है, relationship between f experimental and v for 90 degree diffractor, that is coming from your previous graph। आपका लास्ट वाला ग्राफ है, ये वहां से आ रहा है इस वाले ग्राफ से, ठीक है। इस वाले फॉर्मेट से आपने इक्वेशन लिखनी है और पैरामीटर्स लिख के इक्वेशन में आपने यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है। दैट इज योर रिजल्ट फॉर दिस पॉइंट 4। ओके, लास्ट पॉइंट, with the increase in the diffraction angle of the reflector, the impulse force of jet will either increase or decrease, so you have to take the correct answer. So अभी हमने डिस्कशन कर लिया, I think you should have an idea कि what is the effect of the diffraction angle on the force. So take mark your correct answer. Okay, and finally you will write down your comments. Okay, this is all regarding the lecture today. मैम वो एफ एक्सपेरिमेंट का कॉलम कैसे आएगा वो जरा बता दें। मैम वो एक्सपेरिमेंटल बेसिकली आपके पास आ रही है m इंटू जी से, ठीक है। इसमें m क्या है, आपका मैथ है, आपने ग्राम से मैथ मेजर किया है, उसे केजी में कन्वर्ट करें और उसको जी से मल्टीप्लाई कर दें 9.81 से, तो आपका मैथ कन्वर्ट हो गया कोर्स में टू द न्यू। ओके मैम। और मैम वो नोजल और जो ऊपर डिफ्लेक्टर होता है उसके दरमियान डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मतलब अगर वो वेरी करेगा तो साफ ज़ाहिर है फोर्स भी वेरी करेगी ना उसके हिसाब से। जितना कम है इट मींस कि आपका जो फ्लो पाथ है वो उतना ही कम है। आपकी जो असम्पशन है ना दैट जो v1 एंड v2 आर इक्वल, वो फिर आप कंसिडर कर सकते हैं ओके कि फ्लो डिस्टेंस बहुत कम है, देन ओके यू कैन अज्यूम दैट द वेलोसिटी हैज नॉट ड्रॉप्ड मच। लेकिन डिफरेंस जितना ज्यादा है उन दोनों पॉइंट्स का, नोजल से डिफ्लेक्टर तक का, उस केस में आपकी वेलोसिटी के ड्रॉप होने के चांसेस भी उतने ही हैं, ठीक है। वो डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है, वो कम ही है प्रैक्टिकली जितना आपके केस। होपफुली दे आर कंसीडरिंग द फैक्ट कि भाई वेलोसिटी अगर आपने सेम अज्यूम की है तो इट कैन बी अप्लाइड इन दैट शॉर्ट डिस्टेंस। मैम उसकी वजह से भी तो एरर आ सकता है कैलकुलेशन में। हाँ बिल्कुल, यही मैंने आपसे कहा है कि अगर आपका प्रिंसिपल वेरीफाई नहीं हो रहा देन यू कैन कमेंट कि आपने ये असम्पशन ली हुई है कि ये दोनों इक्वल वेलोसिटीज है, बट
possibly these are not same. For the same आपका principal verify नहीं होता. You can comment on that. ओके मैम. And anyone else? So regarding the evaluation, please make sure next week आपकी evaluation है experiment number 1 और experiment number 2 की. तो evaluation में आपका manual check होगा और आप लोगों का एक short सा viva भी होगा. So expect to answer some questions when I will do your evaluation. I have total 3 hours, so hopefully I will be able to evaluate all the students in that time. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपकी कॉपीज चेक होंगी और आप लोगों का वाइवा भी होगा. आई विल एंटर द मार्क्स डायरेक्टली इन माय रिकॉर्ड, सो प्लीज मेक श्योर यू आर रेडी फॉर द इवैल्यूएशन. अब रिगार्डिंग योर मैनुअल, आपने कैसे सबमिशन करवानी है? यू विल नॉट सबमिट योर असाइनमेंट, सॉरी यू विल नॉट सबमिट योर मैनुअल टू योर सीआर, ना ही मुझे आप इकट्ठी सारी सबमिट कराएंगे. आप लोगों ने अपने मैनुअल्स पे जो आपके हार्ड मैनुअल्स हैं उन पे जो भी चीजें आपने फिल करनी है वो आपने फिल करनी है. फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में जो फिगर्स आपने को ड्रॉ करनी है उनको ड्रॉ करें, जो टेबल फिल करनी है उनको फिल करें, ग्राफ प्लॉट करें. देन टेक देयर पिक्चर्स इन ऑर्डर. ठीक है, उन पिक्चर्स को फिर आप पीडीएफ में कन्वर्ट करें और एक ही फाइल आप बनाएंगे जिसमें पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के सारे पिक्चर्स अटैच हैं और फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की. आप जितना इस चीज को इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वेल एंड गुड. You can add the title pages for experiment 1 and 2 which will differentiate. experiment number 1 यहाँ तक था, अब यहाँ से experiment number 2 start हो गया. ठीक है. And regarding your viva, all of you should join the meeting at time 1 o'clock. All of you should join the meeting, but I will call you one by one. मैं according to roll numbers आप लोगों को one by one call करूंगी and then probably you will attend your meeting with video call. आप लोग video call के साथ अपनी meeting ज्वाइन करेंगे और जिस वक्त आप लोगों की टर्न होगी, फॉर एग्जांपल इफ आई एम कॉलिंग रोल नंबर से 120 से, तो 120 अपना माइक अनम्यूट करेगा, वो वीडियो कॉल के साथ मीटिंग अपीयर होगा और वो उस वक्त मुझे अपनी जो फाइल है इवैल्यूएशन के लिए वो सेंड करेगा, व्हाट्सएप करेगा डायरेक्टली मेरे नंबर पे. ठीक है, तो विद इन द मीन टाइम जब मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगी, आई विल हैव एन ओवरव्यू ऑफ द रिपोर्ट. मैं साथ ही मार्किंग करूंगी आपकी मैनुअल की और साथ ही वो मार्किंग करूंगी आपके वाइवा की. तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट दैट आई विल सबमिट दैट इन बल्क बिकॉज वो काम में भी लायक आता है एंड इट इज नॉट द करेक्ट वे टू इवैल्यूएट. उसमें तो आइडिया भी नहीं होता क्योंकि काम में लायक आना शुरू हो जाता है. So that is your evaluation procedure. So please do expect your full-fledged viva. आपकी evaluation होगी proper. ठीक है, viva में simply you should be able to understand what you have done and why you have done. ठीक है, और साथ में आप लोगों का manual check करूँगी. So you should be ready in every aspect before the class because classes are online. You can have issues with the internet. कोई ना कोई मसला हो सकता है. तो इंटरनेट के लिए भी आप कोई alternate जो है वो ready रखें. Please don't give me the excuse कि अब ये इशू है so we cannot appear or we have not make it ready. कोशिश करें कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करें. अगर आप लोग लेट कर रहे हैं प्लीज, अब ये मैं आज आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ. आई विल नॉट रिमाइंड दैट अगेन एंड अगेन दैट अगर आप लोग लेट सबमिट करवा रहे हैं आई विल इवैल्यूएट दैट, लेकिन उसकी इवैल्यूएशन आपकी 100% में से नहीं है. दैट विल बी ऑफ 80 और 70% डिपेंडिंग कि आप कितना लेट कर रहे हैं. एट द एंड डोंट गिव मी द जस्टिफिकेशन कि आप लोगों ने सबमिट तो सारा कुछ करवाया. ये लेम से एक्सक्यूज आता है एंड पे क्या कर किसी बच्चे के मार्क्स कम है. ही विल जस्ट काउंट व्हाटएवर ही हैज सबमिटेड, लेकिन कितनी लेट सबमिट करवाया है और कैसा सबमिट करवाया है वो उस चीज कंसिडर नहीं कर रहा. ठीक है, लेकिन जब मैंने इवैल्यूएशन करनी है आई हैव टू लुक इनटू ऑल द मैटर्स. जो बच्चा टाइम पर सबमिट करवा रहा है, जो बच्चा अच्छा काम सबमिट करवा रहा है, ऑब्वियसली ही और शी शुड बी गिवन मोर वेटेज. तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग टाइम पे सबमिट करवाएं. अगर आप लेट सबमिट करवा रहे हैं उसकी वैल्यूएशन लेट सबमिशन में ही काउंट हो रही है. Okay, now if you have any questions you can ask me regarding the evaluation or regarding these two experiments. कोशिश करें कि अपना काम आप पहले कंप्लीट कर लें और जो भी क्वेरीज हैं आपकी यू कैन टेक्स्ट मी ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स एंड एज सून एज आई एम फ्री आई विल रिस्पॉन्ड टू यू. ठीक है, मैं फिर आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी. क्या आज भी कंसेक्टिव क्लासेस थी, सुबह भी 3 आवर की क्लास थी और फिर आपकी 3 आवर की क्लास है. तो इफ आई डोंट फाइंड टाइम इन बिटवीन तो मैं आपको जैसे फ्री होंगी मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी.
कोशिश करने के काम आखिरी दिन पे डिले मत करें, इसमें काफ़ी इश्यूज आपको आ सकते हैं। तो ये काम जो है आपका, और सारा कुछ आपने मैनुअल करना है। नो एक्सेल ग्राफ, नो एक्सेल टेबल ऑफ कैलकुलेशंस, नो पिक्चर्स विदाउट हैंड ड्रॉइंग कंडीशन आर एक्सेप्टेबल। सारा कुछ आपने अपने हाथों से काम करना है ऑन द मैनुअल, और फिर उसकी पिक्चर्स आपने शेयर करनी है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, mention your roll numbers on every thing which you are drawing by yourself. अगर आप कोई ड्रॉ कर रहे हैं पिक्चर, तो उस बॉक्स में ऊपर एक कॉर्नर पे अपना रोल नंबर जरूर मेंशन करें, ठीक है। इसी तरह जो अगर आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, मेंशन योर रोल नंबर्स एट वन साइड ऑफ दैट ग्राफ। जो जो चीजें आप मुझे सबमिट करवा रहे हैं फिगर्स की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, उनके एक बॉक्स के साइड पे आपके पास मैनुअल्स अपने हैं। जो जो काम आप करते जा रहे हैं, बस उसके एक साइड पे अपना रोल नंबर मेंशन करते जाएं विद पेन, पेंसिल से नहीं, पेन से या किसी डार्क कलर्ड पेंसिल से अपना वहां पे मेंशन करें, ठीक है। पेन से मार्क करना है या मार्कर से, पेंसिल से आपने मार्क नहीं करना, ठीक है। तो keep these points in mind when you are getting your things ready for the preparation of evaluation, ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप पूछ लें। आफ्टर दैट आई विल मार्क योर अटेंडेंस। No, ma'am. ओके देन जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। मैं आपकी ओपन कर लूँ लिस्ट रोल नंबर्स की, अटेंडेंस में आपकी मार्क कर लूँ, देन यू आर फ्री। उसके बाद 111 प्रेजेंट है। 112, Present, ma'am. 113, Yes, ma'am. 114, Yes, ma'am. 115, Yes, ma'am. 116, Yes, ma'am. 117, 118, Yes, ma'am. 119, 120, 121, Present, ma'am. Ma'am, 120. ठीक है। 121, 121 present. 122, 123, 125, Ma'am, 123. Ma'am, 123. अच्छा, मैम 124, 124 प्रेजेंट 125, 124 ठीक है, आप कर दिया मार्क। 125, 126, Present, ma'am. 127, Yes, ma'am. 128, यस मैम 129, 130, 130, Yes, ma'am. 130. okay, 131, Yes, ma'am. 131, ठीक है, 132, यस मैम 132 133, Yes, ma'am. 133. 134, Yes, ma'am. 134. 135, 135 present, ma'am. 136, Present, ma'am. 136. 137, Present, ma'am.
138, Present, ma'am. 139, 140, Present. 141, 42, Present, ma'am. 142. 143, Present, ma'am. 143. ठीक है, 144, 44 present, ma'am. 145, Yes, ma'am. 146, Yes, ma'am. 147, Present, ma'am. 148, 150, Yes, ma'am. 151, Yes, ma'am. 152, 153, Ma'am, 153. okay, 154, Present, ma'am. 155, Ma'am. 156, Yes, ma'am. 158, 161, 300, Yes, ma'am. 161. Mohammed Asad Ali Khan. 300 present है? Yes, ma'am. Present. Okay, 289, Yes, ma'am. Present. okay, 293, Yes, ma'am. Present. okay, okay, 108, 288, ma'am. 108 present है? Yes, ma'am. Present. Ma'am, Okay, 288 is missing. only 288 is missing. 219 is present? 219, 292, Ma'am, 161. हाँ जी हो गया आपकी, मैंने कर दिया मार्क. Ma'am, 158. 158, Yes, ma'am. अच्छा जी, अच्छा नीचे 219 में 290 नहीं है, 292 भी नहीं है, 288, Yes, ma'am. 288. चलो ठीक, okay 288, okay anyone else? मैम ये दो 161 है, एक मोहम्मद असद अली खान है, एक मोहम्मद बिलाल है। अच्छा अच्छा सॉरी, हाँ आप 19 161 दो, सॉरी ठीक है. जी मैम, मैं 181 और 1 मोहम्मद असद अली खान। ठीक है, और 19 को 161 है? टू 2019 Civil 161, are you present? नहीं, चलें जी ठीक है. Okay, if you have any question, you can ask me. Otherwise, please start your working on the evaluation as soon as possible. If you have any issue, just text me and I will try to respond to you as soon as possible. Okay? Assalamu alaikum, ma'am. Ma'am, 119. So, जी जी वालेकुम सलाम.